Very good morning, students, and welcome back to class 12th science lecture on subject physics. And topic that we were going ahead was electromagnetic induction. जिसमें last class में we studied about LR circuit and we studied how the growth of current takes place in an LR circuit. ठीक है, और हमने स्टडी किया था इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट ताऊ को भी. So I gave you some work कि एक बार व्यू करके देखना कि what would happen after the saturation state and suppose if the battery is removed. ठीक है, तो पहले वो डिस्कस करते हैं, then we'll go ahead with the topic of the day, that is mutual induction. Okay, so here we go. So now in the last class जो हमने कर लिया था कि we had a battery, ठीक है, this was connected with a coil which had its own resistance R, inductor L, which is and the cell with a EMF of E. Now, जो कल हमने देखा था कि in the initial condition, when after some time the current starts going from here, there will be an induced current in this particular direction. ठीक है, but slowly current grow करेगा. हमने क्या स्टडी किया था कि at t equals to 0 current was 0, but at t equals to infinity at a higher time current reached to its peak value, that was termed to be the steady state. Now taking up the condition कि at steady state, I repeat, at steady state, अब हम क्या करते हैं, let us remove the battery. ठीक है, let us remove the battery at the steady state पे हमने बैटरी को हटा दिया. ध्यान से देखिए, steady state पे हमने बैटरी को हटा दिया. Would the current become zero? I repeat, steady state पे हमने बैटरी को हटा दिया. Would the current become zero? क्या करंट जीरो हो जाएगा तुरंत के तुरंत, instantaneously? Will the current become zero? Very good. तो ये इंडक्टर की खासियत है कि करंट सडनली जीरो नहीं होगा. It will slowly decrease, or we can say it will slowly decay. तो अब इसकी ऑब्जर्वेशन वापस शुरू करते हैं, और अब जो प्रोसेस होगा इंडक्टर एल में. ध्यान से देखिए, on removal of battery, the current does not become zero instantly. तुरंत के तुरंत जीरो नहीं होता है. It decreases slowly, or we can say it decays slowly. तो अब खेल क्या होगा? Now at t is equals to 0, याद रखना हमने स्टेडी स्टेट की बात करी थी. तो अब स्टेडी स्टेट में जब ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, at t equals to 0 करंट कितना है, पीक वैल्यू पे है, that is I0. करंट कितना है, पीक वैल्यू पे है. And now at a higher time, at a later stage, that is at t equals to infinity, current will become zero. बैटरी हटाने के बाद का खेल है कि इनिशियल स्टेट में the current at time t equals to 0, पीक वैल्यू होगी, स्टेडी स्टेट पे है, तो I equals to I0. Then at t equals to infinity, I becomes zero. But what would have happened between this time interval? That means what, ये डिक्रीज तो हो रहा है, ये तो क्लियर हो रहा है कि यहाँ डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, then what would have happened at time t equals to t, एक टाइम t पे current would have come to any particular value, reduced it to have a particular value I. Current would have reduced to a particular value I. तो let's check on to this. अब इसको चेक करने के एक और चीज पहले समझ लो. पिछली बार करंट इस डायरेक्शन में
इंक्रीज कर रहा था। When battery was here, then here there was a battery or a cell, तो करंट इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा था। बट नाउ व्हेन द बैटरी इज रिमूव्ड, now the battery is removed, current I in this direction is decreasing, so what will be the direction of induced current in this case? Hurry up. What will be the direction of induced current in this case? अब की करंट इधर की ओर डिक्रीज कर रहा है, so what will be the direction of? Very good, it will be the same. क्यों? क्योंकि इधर रिड्यूस कर रहा है, ये क्या करेगा? ये अपोज करेगा, ये अपोज करेगा, इसका मतलब इधर की ओर इंक्रीज करेगा, इधर की ओर इंक्रीज करेगा, राइट साइड। हेंस द करंट, इंड्यूस्ड करंट will be in this particular direction. Induced current will be in this particular direction. बराबर? Very good all of you. ठीक है, in this particular direction होगा। तो अब समझते हैं कि इसका खेल कैसे बनेगा। Let us find out the procedure, let us find out the mathematical term of this decrease in current, of the decay of current. तो इफ यू सी, तो वापस मैं यहाँ पे जब एक्सप्रेशन लगाऊंगा, ठीक है, वापस एक्सप्रेशन लगाता हूँ, किरचॉफ लॉ अप्लाई करता हूँ, तो ईएमएफ अक्रॉस दिस, ईएमएफ अक्रॉस दिस, व्हाट विल आई गेट माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस आई आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, लूप के साथ भी चला सकते हो तुम, तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, हार्डली मेक्स अ डिफरेंस, वेयरएवर यू वांट यू कैन मेक द लूप। ठीक है, सो व्हाट आई गेट माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, ठीक, वापस कली वाला सिस्टम कर रहे हैं, फिर इसको चेंज करके लिख सकते हैं, तो डी टी बाय एल इज इक्वल टू माइनस डी टी बाय एल इज इक्वल टू डी आई बाय आई आर, डी आई बाय आई आर, और आई कैन से डी आई बाय आई is equals to minus r dt by L. Quite clear? Next step is to integrate both sides. Integrating both sides, ठीक है, इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों को, तो इंटीग्रल di by I which will be equals to integral minus r dt by L. ठीक है, अब जरा शुरू करो भाई, टाइम को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है? 0 से t तक, 0 से t तक ऑब्जर्वेशन टाइम, इनिशियल 0 से चालू किया और t टाइम तक देखा। नाउ व्हाट अबाउट करंट? करंट को कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट, करंट को कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे? क्विक, करंट को हम कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे? वेरी गुड, I नॉट टू I। क्यों? क्योंकि जब स्टेडी स्टेट में जहां देखना शुरू किया तो वहां पे वैल्यू थी आई नॉट, जो रिड्यूस होके आई आई पे, जो रिड्यूस होके आई, वेरी गुड, मैक्सिमम टू एनी करंट आई, तो ये हो जाएगी आई नॉट टू आई। यस, तो इंटीग्रेट कर देते हैं, वन अपॉन आई का इंटीग्रेशन log i बेस e, ठीक है, लिमिट्स पुट करनी है, आई नॉट टू आई, ये हो जाएगा dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट पुट करोगे तो t ही आएगा, तो माइनस r t बाय l। क्वाइट क्लियर? अब फिर से लिमिट्स पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा log i माइनस log i नॉट इज इक्वल टू माइनस rt बाय l। ठीक, चलो अब इसको बोर्ड साफ कर लेते हैं, थोड़ा जगह मिल जाएगी भैया। ठीक है, तो नाउ आई हैव द एक्सप्रेशन log I base e minus log I naught base e is equals to minus RT by L। ठीक है, log A minus log B is log A upon B, log A minus log B is log of A upon B minus RT by L। ठीक, एंटी लॉग ले लेंगे तो मिलेगा I by I नॉट
is equals to e की power minus r t by L. I, therefore I is equals to I naught into e की power minus RT by L. Yesterday we studied a constant tau, which is L by R, which is L by R. पढ़ा था inductive time constant. So as tau is equals to L by R. So this R by L will be 1 by tau. Therefore I will be represented by I naught e की power minus t divided by tau. तो यहां से एक बात और क्लियर हो रही है क्या कि as we studied that the current grows slowly and it doesn't grows in a straight line, it grows exponentially. Similarly, the current while decaying, if you remove the battery, the current would also decay or decrease slowly, not in a straight line but exponentially. But exponentially, ये बात यहां से क्लियर होती है. एक चीज और चेक कर लो that at time t is equals to tau. At time t is equals to tau. तो क्या हो जाएगा? I is equals to I naught e की power minus 1, which can be written as I naught into 1 by e की वैल्यू कल ही बताई थी 0.37. I naught into 0.37 या इसको लिख सकते हैं 37% of I naught. I is 37% of I naught. तो कल एक एक्सप्लेनेशन पढ़ा सकता होगा that is it is a time in which the current increases in the LR circuit. It is a time in which the current increases to 67% of its peak value I naught. Similarly, you can also define it as a time in which in an LR circuit the current decays or reduces to 37% of its peak value. To 37% of its peak value. ये बात तुमको याद रखनी है. So similarly, if you need to make a graph for this one, if you need to make a graph for this time t, current I, तो डिक्रीज या डिके की बात कर रहे हैं तो करंट डिक्रीज डिके कैसे होगा? somewhat like this. और 37% कहां पे आ रहा है? तार पे आ रहा है. So this is the peak value, that is I naught, and this will be 0.37 I naught at time t equals to tau. Is this part very much clear to all the students? समझ में आ गया है? तो we will go ahead with the next topic. We will go ahead with the next topic. ठीक है? चलो, great. So let's go ahead with the next topic, that is mutual induction. ठीक है? अगले टॉपिक पे चलते हैं. बढ़िया मजेदार टॉपिक है ये भी. That is mutual induction. Yes, up till now we studied the process with self-induction, but now we are going to study it with mutual induction. ठीक है? अच्छा, अगले टॉपिक पे आते हैं. Mutual induction. When we talk about mutual induction, तो म्यूचुअल मोर देन वन, ये अपने आप में क्लियर हो गया. कोई दो लोगों के बीच की बात है, कोई दो लोगों के बीच की बात है. सो व्हाट हैपेंस इन दिस केस, we take a coil, let us name this coil 1. ठीक है? Let us name this as coil 1, and we take another coil near to it. Let us name this as coil 2. Let us name this as coil 2. This is coil 1 and coil 2, and
इफ यू सी इन द प्रोसेस, तो यहां पे एक करंट आई जा रहा है, बट ये जो करंट आई जा रहा है इसका एक नेचर विच इज चेंजिंग या वेरिंग लिख देता हूं इसको, एक वेरिंग करंट जा रहा है, एक वेरिंग करंट जा रहा है। Now what happens when there is a varying current? If the current through this coil 1, if the current through this coil 1 keeps changing, keeps varying, then the magnetic field of coil 1 will also vary. Then the magnetic field through coil 1 will also vary. It will also change. But of course, कि अगर इसके थ्रू एक एक कॉइल देख लो, इंडिविजुअल लूप्स देख रहे हो, अगर यहाँ पे करंट चेंज होगा तो इनके थ्रू इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो यहाँ पे करंट आई ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख लेते हैं किस डायरेक्शन में होगी, अज्यूम कर लेते हैं ये 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 ये। तो हर एक लूप का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा। तो भैया डायरेक्शन देख लो किधर की ओर आ रहा है, ये इस टाइप से रोटेट कर रहा है, तो इस टाइप से ये इधर की ओर फील्ड आ रही है, द फील्ड इज इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, इस टाइप से रोटेट कर रहा है, दैट इज क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो डायरेक्शन किधर आएगी, इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये देखो इस डायरेक्शन में आ रही है। दैट मींस देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड दैट विल बी पासिंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। और अगर इसका करंट चेंज हो रहा है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रही होगी। अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही होगी, अब फील्ड अकेले इसमें है, इसकी है, इससे प्रोड्यूस हो रही है, बट पास तो इससे भी हो रही होगी ना, बट पास तो इससे भी हो रही होगी मैग्नेटिक फील्ड, द फील्ड वुड बी पासिंग थ्रू दिस सेकंड कॉइल आल्सो। और ये फील्ड बार बार चेंज हो रही है, ये फील्ड बार बार चेंज हो रही है। If this field is changing, किसकी फील्ड, 1 B1 changes. If B1 changes, then flux through second coil changes. भाई B1 ही पास हो रही है ना, B1 ही इसका फ्लक्स दे रही है, कितना फ्लक्स दे रही है, फ्लक्स थ्रू 2 would be given as B1 multiplied by A, B1 multiplied by A या BA cos theta, just for explanation समझो, phi 2 flux through 2 will be due to magnetic field of 1 and area of coil 2. तो B1 चेंज हो रहा है क्योंकि करंट चेंज हो रहा है, तो करंट चेंज हो रहा है तो फ्लक्स भी चेंज होगा। And if the flux changes, then there will be an induced current in coil 2. There will be an induced current in coil 2. ठीक है, डायरेक्शन लेंसेज लॉ से निकाल सकते हो, इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है, वो बहुत आसानी से निकाल सकते हो डायरेक्शन by just following the process. Quite clear? समझ में आ रही बात? तो समझ में आ रही बात तो इसमें ध्यान से देखो। फ्लक्स टू अल्टीमेटली किसकी वजह से चेंज हो रहा है, रिस्पॉन्ड करो जल्दी से। फ्लक्स टू अल्टीमेटली या इनिशियली या ये समझो मेनली किसकी वजह से phi 2 चेंज होगा। What will be the reason for the change of phi 2? Just don't give the answer correct. Just खाली सिंपल समझो बात को। Very good. Due to current in 1, due to current in 1, करंट पहले में चेंज होगा तभी इसमें चेंज हो रहा है। So I can say phi 2 is directly proportional to current through the first coil. Phi 2 is directly proportional to the current due to the first coil. ठीक है, क्लियर हो गई बात। प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो यहां पे एक कांस्टेंट लगा देंगे which is m, and this is nothing but the coefficient of mutual induction. This is coefficient of mutual induction. इसी को हम नाम देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब यहां से m को समझने की कोशिश करो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो यूज करना है काफी जगह। phi 2 is equals to m/1, ठीक है, phi 2 is equals to m/1। अब यहां से m को समझने की कोशिश करो तो इफ यू सी m, तो m can be written as phi 2 by i1, phi 2 by
I1। यूनिट बेटा क्या हो जाएगी, वेबर पर एम्पियर। फ्लक्स की यूनिट वेबर, करंट की एम्पियर, तो वेबर पर एम्पियर। अब बात आती है एम, किस पे डिपेंड करेगा, गौर से देखो। एम डिपेंड कर रहा है phi2 पे, एम डिपेंड कर रहा है I1 पे। दैट मींस phi2 किस पे डिपेंड करेगा, phi2 बट ऑफ कोर्स विल बी डिपेंडिंग अपॉन, देखो I1 से मैग्नेटिक फील्ड वाला केस हो गया, बात हो रही है एरिया की। दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द ज्योमेट्री, वी आर टॉकिंग अबाउट द ज्योमेट्री, as well as we are also talking about the orientation, we are also talking about the orientation। तो बात m किस पे डिपेंड करेगा, m will depend upon the geometry, m will depend upon the orientation, as well as the separation between the coils, as well as the separation between the coils। तो इसको एक important point याद रखना, छोटे में आ सकता है ये तुमको कंपटीशन में, क्या m depends on geometry of coils, separation and the orientation of coils। जिस पे फ्लक्स डिपेंड कर रहा है और करंट पे तो डिपेंड कर ही रहा है। Is this part very much clear? Yes, please. Clear, Anita? Is it clear to all? अगर ये क्लियर है तो यहां पे एक चीज और देखो, अगर ये सेम बैटरी, ये सारा हटा देते हैं और अभी हम क्या करते हैं कि if suppose the same battery you place over here, सेम बैटरी उठा के इधर लगा दी और यहां पे लगा दिया गैल्वेनोमीटर, will there be a change in the value of m? बाकी सब कुछ सेम। will there be a change in the value of m? quick, will there be a change in the value of m? exactly no। very good अमन, कोई चेंज नहीं होगा m की वैल्यू में। अगर तुम यहां से यहां कर दोगे, इसमें कोई एक करंट फ्लो होगा, इसमें कोई एक करंट फ्लो हो रहा है, मान लो I2 फ्लो हो रहा है, तो अब इसके थ्रू पास होता हुआ फ्लक्स थ्रू phi1 वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2, क्योंकि I2 चेंज होगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। सो यू विल से phi1 इज इक्वल्स टू MI2, phi1 इज इक्वल्स टू MI2। तो m is not going to change। और दिमाग में ये चीज रख सकते हो, बात हो रही है म्यूचुअल, तो 1-2 में जितना करेगा उतना ही 2-1 में कर सकता है, if the conditions remain the same। ठीक है, तो चलो ये तो अपने को phi2 आ गया। अच्छा भैया, ये आ गया phi2 phi1 m। दिमाग में रखना कि m चाहे फर्स्ट सेकंड में लो, चाहे सेकंड से फर्स्ट में लो, m is not going to change in any of the cases। so we've got the expression for phi2। now what about E2? as per Faraday's law, E2 is what? minus d phi by dt। और phi किसका चेंज हो रहा है, 2 का, तो d phi2 by dt। phi2 कितना है, mi1। E2 is equals to minus d mi1 by dt। now mutual induction, coefficient of mutual induction is a constant। ठीक है, ज्योमेट्री कांस्टेंट है, सेपरेशन कांस्टेंट है, ओरिएंटेशन कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं है, दैट मींस m is also a constant। so I can say E2 is equals to minus m d I1 by dt। E2 is m minus m d I1 by dt। ये एक्सप्रेशन को भी यहां पे लिख लेते हैं। और बड़ी अच्छी चीज देखो यहां से कि क्या लिख के आ रही है, यहां पे क्लियरली लिख के आ रहा है that the EMF induced in coil number 2 is due to the change in current in coil number 1। EMF induced in coil 2 is due to, ये तो कांस्टेंट है,
is due to the change in current in coil number 1 di1 by dt. Again this clarified. E1 निकालोगे तो क्या आएगा? E1 निकालोगे तो आएगा minus m di2 by dt. That is EMF induced in 1 is due to the current change in coil 2. Is due to the current change in coil 2. क्लियर हो गई बात? आई होप क्लियर होगा, ये तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब यहां से एक और चीज देखो कि आई नीड टू डिफाइन m अगेन। इफ आई नीड टू नॉट हेयर मॉड्यूलस, मॉड्यूलस अभी दिखाता हूं। मॉड पुट कर सकते हो बेटा, बिल्कुल मॉड पुट कर सकते हो। अब देखो ध्यान से प्रियांशु, इफ आई नीड टू डिफाइन m, ये तो क्योंकि यहां डायरेक्शन इंक्लूड करोगे, अगर तुम्हें डायरेक्शन इंक्लूड करनी हो तो माइनस पुट करो, डायरेक्शन इंक्लूड नहीं करनी हो तो मॉड पुट कर लो। ठीक है, अब देखो, पर जब तुम m को डिफाइन कर रहे हो तो म्यूचुअल इंडक्शन तो यार नेगेटिव होगा नहीं, म्यूचुअल इंडक्शन तो नेगेटिव होगा नहीं। तो अगर m की बात करोगे तो m क्या आएगा बेटा? m विल बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ e2 होल अपॉन di1 बाय dt। प्रियांशु समझ में आई बात? प्रियांशु समझ में आई? ये जो अपन नेगेटिव लेते हैं इसका मेजर सीन क्या है? केवल टू शो दैट डायरेक्शन इज अपोजिट। यहां पे हम इंक्रीज डिक्रीज की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पे माइनस साइन लगाता है लेंसेज लॉ। माइनस साइन कौन लगाता है? लेंसेज लॉ। ओके, टू शो दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑपोजिट टू द प्राइमरी, ऑपोजिट टू द कॉज। ओके प्रियांशु, क्लियर बाबू? तो ऐसा नहीं कि तुम यहां मॉड पुट नहीं कर सकते हो या मॉड पुट करना ही करना है। इट्स नॉट अ वेरी नेसेसरी कंडीशन, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। सो यहां पे देखो आया m इज इक्वल्स टू e2 अपॉन मॉड ऑफ di1 बाय dt। if di1 by dt is equals to 1 amperes per second, अगर ये 1 एम्पियर पर सेकंड हो जाता है तो बेटा m कितना हो जाएगा? m will be equal to the mod of e2 या m will be equals to e2. So I can say if the rate of change of current in the first coil, if the rate of change of current in the first coil is 1 amperes per second, then the EMF induced in the second coil is equals to the mutual induction of the two coils. एक coil का mutual induction नहीं होता, mutual induction दोनों coil का होता है। So if the rate of change of current in the first coil is 1 ampere per second, then the EMF induced in the second coil is equals to the mutual induction of the two coils. Is this part very much clear to all of you? अभी क्लियर हो गया तुम्हें म्यूचुअल इंडक्शन का बेसिक? यस, वेरी गुड। तो चलो भाई, अब हम कर लेते हैं इसी का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर एक अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे टू एंड ऑफ द लेक्चर। ठीक है, let's find out the mutual induction due to two long solenoids of equal length, बाकी सब चीजें अलग हैं, केवल और केवल इनकी लेंथ इक्वल है। ठीक है, ऑफ इक्वल लेंथ प्लेस्ड वन इनसाइड अनदर, एक जो है वो दूसरे के अंदर रखा हुआ है। तो लेट अस टेक द सिचुएशन, ये है सोलेनॉइड 1, ठीक है, और इसी के अंदर एक छोटा सा सोलेनॉइड और रखा है ऑफ इक्वल लेंथ
ठीक है, दोनों की लेंथ इक्वल है, दोनों की लेंथ इक्वल है। तो फॉर कॉइल 1, ध्यान से देखो भाई, फॉर कॉइल 1 सोलेनॉइड है, बट हम कॉइल लिख के काम करते हैं। फॉर कॉइल 1, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N1, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N1, लेंथ L, रेडियस ऑफ ईच लूप R1। ठीक, सिमिलरली फॉर कॉइल 2, number of turns per unit length N2, total number of turns capital N2, length L, radius of each loop R। बराबर, तो ये बाहर वाला कॉइल हो गया 1, अंदर वाला कॉइल हो गया 2। ठीक, तो प्रोसीजर ठीक वही शुरू करते हैं। That due to the change in current in 1, पहले में करंट चेंज किया तो करंट की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, बट ऑफ कोर्स इट इज अ सोलेनॉइड, उसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो सेकंड कॉइल के थ्रू पास होता हुआ फ्लक्स चेंज होगा, सेकंड कॉइल के थ्रू पास होता हुआ फ्लक्स चेंज होगा, तो उसमें एक इंड्यूस करंट आएगा। कहानी सेम है, कहानी सेम है। तो बात करना है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट कॉइल। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट सोलेनॉइड B1, magnetic field due to first solenoid B1. What is the magnetic field due to a solenoid? What is the magnetic field due to solenoid 1? What is the magnetic field due to solenoid 1? Don't say खाली mu naught n I। हाँ ठीक है, वो टाइपिंग में दिक्कत भी आएगी, पढ़ाई के अंडरस्टैंड की कॉन्सेप्ट आ गया। इट इज mu naught n1 I1। It is mu naught n1 I1। अरे 1 और 2 का बड़ा लंबा गेम है भाई, यही तो मेन है। mu naught n1 I1, ठीक है, वो भी स्मॉल है, वो भी स्मॉल है, कैपिटल नहीं है। अगर कैपिटल N लगाओगे तो mu naught n1 I1 by L, mu naught capital N1 I1 by L। Don't make this mistake, if you are putting small n, ये एक्सप्रेशन आएगा, that is number of turns per unit length। अगर कैपिटल N लगाओगे तो बेटा आएगा mu naught capital N1 I1 divided by L। ओके, तो ये तो होगी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1। तो अब निकालना है अपने को, अब निकालना है अपने को, देखो बड़ा आसान सा तरीका है, फ्लक्स ड्यू टू 2। तो फ्लक्स ड्यू टू 2 क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ 2। फ्लक्स ड्यू टू 2 क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 पासिंग थ्रू एरिया ऑफ 2, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 पासिंग थ्रू एरिया ऑफ 2। तो अच्छा, पहले यहां पे A2 निकालो, व्हाट विल बी A2? A2, तो A2 देखो, एरिया ऑफ ईच लूप, एरिया ऑफ ईच लूप कितना होगा, पाई R2 स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है N2, मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है N2। अच्छा, N2 कितना होता है, N2 टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, कैपिटल N2, आई रिपीट कैपिटल N2 टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, यही होता है ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। तो ये कितना हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर इनटू N2 L। क्लियर है भैया, पाई R2 स्क्वायर इनटू N2 L। हाँ ओके, तो अब A2 भी मिल गया हमको। लेट अस प्लेस द वैल्यू ऑफ B1 फ्रॉम इक्वेशन 1, लेट अस प्लेस द वैल्यू ऑफ A2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो हमें फ्लक्स ϕ2 क्या मिलेगा, फ्लक्स ϕ2 हमको मिलेगा B1 दैट इज mu naught n1 I1 into A2 which is pi R2 square into N2 into L। Now this can again be written as ϕ2 is equals to देखो mu naught n1 n2 pi R2 square L, mu naught n1 n2 pi R2 square L whole multiplied by I1, and I put it as equation number 4। ठीक है, ओके। नाउ
बेसिक से ही देखा था हमने, इसीलिए कहा था इंपॉर्टेंट है। phi2 इज व्हाट, phi2 इज व्हाट m into i1, phi2 इज व्हाट m into i1, phi1 क्या होगा m into i2, ठीक है। तो phi2 कितना m into i1, ये हमेशा रहेगा। तो as phi2, इधर लिखते हैं तो कंपेयर करना आसान रहेगा। as phi2 is equals to m into I1, therefore m is equals to, तो यार सिंपल डायरेक्ट कंपेयर हो रहा है यहाँ पे। m is nothing but I1 I1 कर आएगा, तो m क्या मिलेगा हमको, म्यू नॉट n1 into pi r2 square, म्यू नॉट n1 into pi r2 square। सेम प्रोसीजर तुम फॉलो कर सकते हो अगर तुम 2 से 1 का निकालो, 2 से 1 का निकालो and you will be getting the same value, that is M12, I can say mutual inductance of 1 with respect to 2 and mutual inductance of 2 with respect to 1, both are same। ये तो हम शुरुआत में ही देख चुके हैं कि M is same for the given pair of coils। Is this part very much clear to you? Topic clear है बेटा, समझ में आ गया सबको? Mutual induction due to two long solenoids of equal length placed one inside another। Is it clear to all? Okay, great। तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं and then we'll wind up। बेसिक्स याद रखना, और tomorrow we will be discussing about the question paper जहां पे बच्चों ने मैक्सिमम गलती करी है, ठीक है। आप में से मैक्सिमम बच्चों ने, the best part is कि मैक्सिमम बच्चों ने जो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया है खुद से अटेम्प्ट किया है। कुछ बच्चों ने अटेम्प्ट किया है गूगल बाबा की हेल्प लेके, वो क्लियर पता चल जाता है उनका सॉल्यूशन देख के कि कईयों ने सॉल्यूशन लिखने में, कॉपी करने में इतना टाइम लग गया कि पूरा पेपर नहीं कर पाए। तो आई कैन क्लियरली मेक आउट किसने गूगल बाबा से किया, किसने खुद से किया। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैक्सिमम बच्चों ने खुद से किया है, सिवाय एक दो के। मैक्सिमम 2 बच्चे थे जिन्होंने गूगल बाबा की हेल्प ली है, रेस्ट एवरीबॉडी हैज डन बाय इट्स ओन। ओके, सो लेट्स डू अ क्वेश्चन एंड वाइंड अप एंड टुमारो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि जिन बच्चों ने अपने आप किया है तो कहां-कहां पे पेपर छूटा है और गड़बड़ हुई है। ओके, so here goes the question, find the coefficient of mutual induction, find the coefficient of mutual induction due to the system of two concentric coils shown, ठीक है। And given as R1 is very much greater than R2, R1 is very much greater than R2। तो देखो भाई, एक कॉइल ये है, ठीक है, ये है सेंटर, और एक कॉइल ये है, एक कॉइल ये है, दिस इज R1 और इसका छोटे वाले जो साथ अंदर है, इसका रेडियस है R2, इसका रेडियस है R2, ठीक है। तो कोई बहुत टिपिकल चीज नहीं है, खेल हमको वही खेलना है। करंट इन 1 changes magnetic field or magnetic flux through 2 due to which there will be induced current in 2, mutual induction का प्रोसेस पूछ रहा है, तो शुरू करते हैं खेल। मान लो इसके थ्रू करंट I1 जा रहा है, कॉइल 1 के थ्रू करंट I1 जा रहा है, ठीक है। सो व्हाट विल बी फ्लक्स phi2? फ्लक्स phi2 will be V1 into area of 2, यही होगा। फ्लक्स थ्रू 2 कितना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 into area of 2। अच्छा, magnetic field due to 1, magnetic field, what is the magnetic field
at the center of a current carrying circular coil. What is the magnetic field at the center of a current carrying coil? जल्दी बताओ. म्यू नॉट आई, वेरी गुड नव्या. म्यू नॉट I1 अपॉन 2R1. ठीक है, तो V1 कितना हो जाएगा? म्यू नॉट I1 अपॉन 2R. म्यू नॉट I1 अपॉन 2R. यहां पे बात आती है इसके इंपॉर्टेंस की. यहां पे बात आती है इसके इंपॉर्टेंस की. Now, if it says that R1 is very much greater than R2, R1 is very much greater than R2, that means R2 with respect to R1 is a small point. R2 with respect to R1 is a small point. That means इसकी टोटल जितनी फील्ड सेंटर पे होगी, जितनी फील्ड सेंटर पे होगी, तो ये इतना छोटा है कि नियरली सारी की सारी फील्ड इसके थ्रू पास हो रही होगी. That means the flux would be passing through the entire loop 2. The flux would be passing, the entire field would be passing through loop 2. तो loop 2 से पास हो रहा है, तो टोटल loop 2 का एरिया कितना है? पाई R2 स्क्वायर. टोटल एरिया loop 2 का कितना है? पाई R2 स्क्वायर. So therefore I can say, sorry, 5. Therefore, phi2 can be written as mu naught pi R2 square whole upon 2R1 multiplied by I1. ये होगा इक्वेशन. क्या करना है? वही सेम पुराना स्टेप जो हमने शुरुआत से इस चैप्टर में किया है कि as phi2 is equals to MI1. कंपेयर कर लो. phi2 is equals to MI1. तो ये M कितना आ गया? कंपेयर करके देख लो. तो M कितना आ गया? Therefore, mutual coefficient of mutual induction M is equals to mu naught pi R2 square by 2R1 Weber per ampere. Is it clear to all of you? How are you too? Is it clear to all the students? समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो बेसिक स्टेप हम क्या कर रहे हैं? phi2 which is p1 into a2 or finally phi2 is mi. Okay, so that's all for today. Thank you very much. I hope you must have understood the topic, and it's very good that today all the students were present. So thank you very much. Take care. Enjoy yourself. Have a nice day. Stay safe. Stay home. And say Bharat Mata ki Jai. Thank you.